Thank you. Thank you. Uh, so today's topic is financial market. So this is the second component of the financial system. So everybody have received the notes and the recorded lectures which have shared on Google Classroom. So anybody is facing difficulty in accessing those material? Yes. Yes, I am audible. Yes, sir. हाँ, so आपको मटेरियल सब मिले ना जो मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर किया था? Yes, sir. ओके। हाँ, so financial market, it is a place where money is being borrowed by the government, banks and other financial institutions. Okay, so it is a place, जैसे मार्केट हमारे पास होता है, वेजिटेबल का मार्केट होता है, फिर डिफरेंट शेयर्स का जैसे स्टॉक मार्केट होता है, तो वैसी मनी फाइनेंशियल मार्केट एक एरिया है जहाँ पे आप पैसे को खरीदते हैं, बोरो करते हैं, ओके, और you lend the money. Okay, so that is a money market. And now the type of financial market is money market and capital market. So these are the two markets which are available in financial market. So financial market kya hai? It's a place where government, banks and other financial institutions used to borrow money from each other, and that place is called as financial market. And there are basically two types of financial markets available. One is money market and second one is capital market. Now what is the difference between these two? Money market is just a short term market, okay, short term period. So whatever uh, money you are going to borrow or whatever the transaction going to happen, that transaction will be limited for 1 year only. It will not be more than 1 year. So it is for 1 year, short term period. And capital market is for long term. If you are borrowing money for long term duration, more than 1 year, then that market where these type of loan or this type of borrowing is going to happen, that area or that place is called as capital market. Okay, so that is the difference between these two types. So financial market are of two types: money market and capital market. And money market is what? Short term period, 1 year only, and capital market is long term period, that is more than 1 year. Okay. Now second, now we will go in detail with the about the money market. This I have already prepared for you. I will be sharing the Google Classroom for your study purpose. Now money market is a major segment of the organized sector regulated by RBI. It refers to that market wherein money is borrowed and lent for a short period. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको इट्स अ मेजर सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर. मेजर सेगमेंट मतलब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है इसमें. लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है. ओके, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पैसा यहाँ से वहां बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है. वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा, वॉलिटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है. जब हम ट्रांसफर करते हैं तो आज कुछ रेट है तो कल कुछ और रेट होगा ट्रांसफर का. आज कुछ और बोरो का चार्ज है तो कल और चार्ज, दूसरा कुछ चार्ज होगा. वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा वेरी होती है. आप टर्म समझ लीजिए. लिक्विडिटी मतलब ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, फास्टर ट्रांजेक्शन. लिक्विडिटी मतलब फास्टर, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया तो आप कल इमीडिएटली पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी. और वॉलेटिलिटी मतलब देयर इज अ रेट फ्लक्चुएशन. मतलब आज ये भाव पे मिल रहा था कल वो भाव पे मिलेगा. वेरिएशन, परचेज करने का, पैसे को परचेज मतलब जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाओगे, डिस्काउंट लगाओगे, वो वेरी होता है, बहुत फास्ट है. तो इसीलिए इसको वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें. ठीक है, इसमें देखो जैसे मैंने बताया, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. इट्स अ शॉर्ट टर्म फंड. बहुत कम टाइम के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है, और इट कैन बी ओवरनाइट और फोर्टनाइट और टर्म फंड्स. सो इसका आप पीरियड भी देख सकते हो, 1 से या लेस देन 1 ईयर का
ड्यूरेशन रहेगा। मैच्योरिटी मतलब आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी से उधारी लिया है फ्रॉम मनी मार्केट, मनी मार्केट से आपने कोई पैसे उधार लिया है, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना जरूरी है। जिस भाव पे आपने खरीदा है, मतलब आप, मैं रिटर्न करते वक्त आपको एक्स अमाउंट दूंगा। सपोज मैंने लिया था 10,000 और जब मैं रिटर्न करूंगा आपको तो मैं 20,000 रुपए दूंगा। ये अगर मेरा बात तय हुई है तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे 20,000 रुपए रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये मैच्योरिटी पीरियड मतलब इतने ड्यूरेशन के बाद आप तक आपको पैसा आपको बोरो रहेगा, उसके बाद इमीडिएटली आपको देना रहेगा। ठीक है। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए ये डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, पैसे देना और लेने का तरीका कैसे होगा, एक होता है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स, तीसरा है कमर्शियल बिल्स, चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिफ्थ वन इज कमर्शियल पेपर, देन सिक्स वन इज कॉल मनी मार्केट, and seventh one is collateralized borrowing and lending obligations. So these are the instruments, sub part of money market. Money market is one of the instrument of financial market. Financial market is one of the part of commercial component of financial system. So आप देख रहे हैं मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, वैरायटीज क्या क्या अवेलेबल, जिस तरीके से आप क्या पैसे ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पैसे लेने के लिए आपके पास ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। तो हम वन बाय वन ये सारे स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, एक है ट्रेजरी बिल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कॉल मनी मार्केट, ये मैक्सिमम यूज होता है। कॉल मनी मार्केट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सबसे ज्यादा यूज में आता है। बाकी जो है बहुत कम इंपॉर्टेंट है, और ये कमर्शियल बिल भी थर्ड नंबर पे है। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, देन कमर्शियल बिल्स, उसके बाद लीस्ट जो होता है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कोलैटराइज्ड बोरोइंग, ये बहुत हार्डली होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मनी मार्केट में वो यूज होता है कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, और उसके बाद तीनों यूज होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड कमर्शियल पेपर एंड कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो आप ये टर्म ध्यान में रखिए, मनी इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। अब उसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कॉल मनी मार्केट। अभी तक आपको समझ में आया, कोई डाउट है किसी को? यस सर। ओके। तो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, मैं एक और बार रिवाइज करते हैं। तो अभी बच्चे जो ज्वाइन करें, हम स्टडी करें फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम समझ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे मनी की बोरिंग और लेंडिंग होती है, यानी खरीद फरोख्त होती है। जैसे हम कहीं पे मार्केट, सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो उसको वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या है, पैसे खरीदे जाते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है। अब उसमें दो टाइप अवेलेबल है, मतलब खरीदने के बाद आपको कितने दिन में वापस देना है या बेचना है, तो उसका ड्यूरेशन के हिसाब से दो टाइप है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो खाली 1 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए खरीद फरोख्त, मतलब सेलिंग और परचेज का परमिशन देता है, और कैपिटल मार्केट आपको देगा 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन। ठीक है। तो ज्यादातर आप देखेंगे मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, कमर्शियल बिल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है, कॉल मनी मार्केट होता है, कोलेटराइज्ड बोरोइंग होता है एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट। ना सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड मनी मार्केट। ओके। अब देखो ये एक सिंपल एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। देखो, जब भी कोई बैंक ओपन होता है या बैंक काम करता है, तो बैंक के पास एक कुछ रूल्स आरबीआई इंप्लीमेंट करती है। आरबीआई क्या बोलता है कि आपके पास हमेशा, आपके पास जो पूरा पैसा जो आप लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हो, जो आप सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हो, उस सब का पैसा जितना भी टोटल अमाउंट है उसका 4% आपके पास हमेशा बैंक में होना चाहिए। और सिमिलरली उसका 4% आपको आरबीआई के पास भी रखना जरूरी है। तो टोटल आपके पास 8% पैसा
रहना जरूरी है। मतलब टोटल एक सम एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जो पैसा बैंक में रखा रहता है, ओके, क्लियर है, और एक कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो पैसे बैंक में जो रखते हैं, बैंक में पैसे ये कभी कभार कम हो जाते हैं, 4% नहीं हो पाते हैं। कुछ उन्होंने किसी को उधार दे दिया, या कोई अचानक से आ गया, बोला मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, मुझे चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट। जैसे विड्रॉ करता है तो जो उनके पास जो कैश रिजर्वर में कैश रहना चाहिए, जो बैलेंस रहना चाहिए, वो 4% से कम हो जाए। अब वो 4% से कम हुआ तो आरबीआई पेनल्टी बैठा देगा। तो ये चीज को बचने के लिए बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से पैसे 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 साल के लिए उधार में पैसे लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पैसे लेने के तरीके हैं, ये कहा किस तरीके से पैसे लिए जाएंगे एक बैंक दूसरे बैंक से, इसको बोलते हैं हम इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मतलब एक बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक में देखा कि आज उसके इधर से पैसे ज्यादा विड्रॉ कर लिए गए, और उसके पास जो 4% का रिजर्व मेंटेन करना है वो नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो वो इमीडिएटली आईसीआईसीआई बैंक से 1 दिन, 14 दिन या 1 साल के लिए पैसे उधारी पे ले सकते। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं हम, ये कहाँ हो सकता है पॉसिबल, कॉल मनी मार्केट में पॉसिबल। समझो आपको एग्जांपल? यस। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये 4% जो आपने बोला वो किसका 4% हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे पास जो मेरे पास बैंक के अकाउंट में लोगों ने पैसे मुझे डिपॉजिट करे, सपोज आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, मेरा भी उसी बैंक में अकाउंट है, मैंने भी 20,000 रुपये डिपॉजिट किया है, तो टोटल बैंक के पास कितने पैसे सेव है, 30,000 रुपये। ठीक है। अब बैंक ने 30,000 रुपये उसके पास सेविंग में रखे हुए हैं, तो वो 30,000 रुपये ऐसे रखा तो नहीं रहेगा, उसका तो वेस्ट हो जाएगा ना अगर वो पैसे रखे रहेगा तो। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, 20,000 के कुछ 4% निकालता है एज पर दी आरबीआई पॉलिसी। वो देखो 4%, 5% कुछ भी रहेगा, वो डिपेंड वेरी होता है, हर बार पॉलिसी आरबीआई की चेंज होती है कि इतना पैसा बैंक को मेंटेन रखना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया 4%, तो 30,000 का 4% वो रखेगा, तो 20,000 का 4%, 30,000 का 4% कुछ होगा, उसको 5,000 6,000 तक कुछ होता है, तो 5,000 6,000 उसको हमेशा अपने बैंक सेविंग अकाउंट में मेंटेन रखना पड़ेगा। अब बाकी के जो बचते पैसे 24,000 रुपए या 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए किसी और को उधारी के तौर पे दे सकता है कुछ इंटरेस्ट पे, ताकि वो बंदा लेगा, अपना काम करेगा, और फिर मुझे जब देगा रिटर्न, तो 20,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा वो मुझे इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे देगा। अब जो ये सेविंग है ना, ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, तो ये आरबीआई की पॉलिसी है। समझा आपको? अच्छा, मतलब सेविंग पे रहता है, सेविंग पे हाँ, वो इंटरेस्ट लेता है। यस यस, सेविंग जितना भी बैंक के पास पूरा जो ऐसे पैसे कलेक्ट होते हैं, जितना भी उसके पास पैसा आएगा, बैंक के पास जितना भी बैलेंस शीट में पैसे रहेंगे, उसका उतना कैश रिजर्वायर उसको मेंटेन करना पड़ता है। और अगर ये ठीक है मेंटेन सर। नहीं किया तो आरबीआई उसके ऊपर ह्यूज पेनल्टी डिप्लॉय करती है। समझ में? अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो ये कभी कभार कैसा, रिजर्व मेंटेन करने के लिए वो कभी कभार दूसरे बैंक से उधार लेती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेती है, और उसको वो मेंटेन रखती है हमेशा, ये उनका काम रहता है। इन इन थ्रू आउट द डे आपने देखा होगा, बैंक जब काम करती है तो 1 घंटा वो लोग अपना कैश सेटलमेंट करते रहते हैं, मतलब वो सेटलमेंट करते हैं बैंक, कभी किसी कस्टमर को अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन बैंक फंक्शनिंग पे रहती है। वो अंदर क्या करते हैं, अपना कैश रिजर्वर को मेंटेन करते रहते हैं कि हमारे पास अभी क्या शॉर्टेज है क्या, क्योंकि दिन भर में बहुत सारा पैसा आया गया है, तो फाइनली मेरे पास कितना बैलेंस है वो बैंक को टैली करके रखना पड़ता है। समझा? यस यस, सर। अंडरस्टूड। हाँ, अब देखिए हम ये रीड कर लेते हैं पॉइंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के। और एक और चीज है, कॉल मनी मार्केट एक और एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया है, और सपोज 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए जमा हो गया है, और वो बैंक में रख के क्या करेगा 1 दिन के लिए,
उसको मालूम है कि नेक्स्ट 2-3 दिन कोई ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है, तो वो क्या करता है, किसी और बैंक को दे देता है वो पैसे कुछ इंटरेस्ट पे। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई बैंक देती है, उनके पास अगर कुछ अमाउंट जमा हो गया, रिजर्वर में पैसे जमा हो गए, तो वो दूसरे बैंक को दे देती है 4% के इंटरेस्ट पे। बैंक वाले उनसे लोन ले लेते हैं 4% के ऊपर, 4.9 चलता है कुछ, रेपो रेट जो बोलते हैं हम, है ना। हम वो पैसे ले लेते हैं, बैंक वाले लोग ले लेते हैं, और वही पैसे बैंक वाले वही पैसे को दूसरे होम लोन के तौर पे लोगों को दे देते हैं। और होम लोन कितने पे देते हैं? 8% पे। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिया था 5% पे और दिया कितने पे? 8% पे। तो 3% उनका फायदा हो गया। समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. So the call money market deals with loans for short duration. Short duration के लिए होता है. It mainly deals with 1 day loan, which may or may not be renewed to next day. Next day renew भी नहीं हो सकता अगर 1 day loan है तो. It refers the market for very short period of time. Call money market is that particular of the national money market whereby day by day surplus fund are traded in mostly by banks. Okay, day by day मैंने अभी आपको बताया कि एक बैंक के पास 120 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो रख के क्या करेगा? रखा रहेगा तो वेस्ट होगा, उसने दूसरे को दे दिया और कुछ इंटरेस्ट पे चार्ज किया, बोला मुझे 2 दिन 14 दिन पे दे देना आप पैसे, लेकिन जब दोगे वापस तो मुझे ये इंटरेस्ट पे आपको देना रहेगा, 8% 9% पे आप मुझे पैसे वापस दोगे। तो बैंक वापस रिटर्न देता है 8% के ऊपर जो उसका चार्ज है वो दे के कंप्लीट करता है, तो उसे बैंक को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ कॉल मनी मार्केट इज इन डिफरेंट नेशंस वेरीज फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर हमारे इधर मनी मार्केट का प्रोसेस हम समझेंगे, ये दूसरे कंट्री में कुछ और होगा, फिक्स नहीं है, सेम नहीं रहता प्रोसेस। ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट का जो प्रोसेस है, नेचर है और कैरेक्टर है, चेंज होता है नेशन टू नेशन। बट वन कॉमन फीचर ऑफ कॉल मनी मार्केट इज दैट इट डील्स विद लोन which are very short maturity and highly liquid। एक कॉमन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, मैच्योरिटी एंड हाईली लिक्विड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देखेंगे टाइप्स क्या है कॉल मनी मार्केट के। देखो, अगर आप एक दिन के ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो उधार तो उसको हम कॉल मनी बोलेंगे। 2 से 14 दिन के लिए ले रहे हो तो उसे नोटिस मनी बोलते हैं। और 14 दिन से के बाद ज्यादा और 1 साल से कम, मतलब 364 डेज के लिए है, तो आप उसको बोलेंगे टर्म मनी। ये टाइप्स आप ध्यान में रखिए। ठीक है, समझ में? अब नेक्स्ट, कॉल मनी मार्केट इन इंडिया। कॉल मनी मार्केट इन इंडिया कैसे ऑपरेट करता है? इट ऑफर्स, देखो, कॉल लोन्स इन इंडिया आर ऑफर्ड टू बिल मार्केट। फिर सेकंड पॉइंट है, फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग इन बुलियन मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। देन बिटवीन बैंक्स में यूज होता है, frequently to person of high financial status in Mumbai for ordinary business objective in order to save interest on cash credit and overdraft। okay, then interbank, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल में बताया, बैंक के बीच में कॉल मनी मार्केट इज क्वाइट पॉपुलर। बैंक बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स टू मीट एन इमरजेंसी डिमांड ऑफ फंड, लार्ज पेमेंट, ह्यूज रेमिटेशंस एंड टू मेंटेन कैश और लिक्विडिटी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल के तौर पे बताया, यहाँ कॉल मनी मार्केट यूज में आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. हाँ सर। हाँ, अब देखो, ये जो कॉल मनी मार्केट में जो कॉल के हिसाब से लोन लिया जाता है, ये अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई गारंटी नहीं लगती है, ना इसमें कोई कोलैटरल लगता है, कोई उधारी, मतलब कोई गिरवी कोई चीज नहीं रखना पड़ता है, कोलैटरल प्रोसेस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मतलब आप लोन ले रहे हो बस एक ट्रांजेक्शन के तौर पे, उसमें कोई आप उसमें गिरवी कुछ नहीं रखोगे, ना इसमें कोई डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। द कॉल लोन्स इन इंडिया आर अनसिक्योर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान में रखिए, सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है टोटली। कॉल मनी मार्केट इज टोटली अनसिक्योर्ड प्रोसेस, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करेक्शन होने के। अब देखो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो, इसलिए सबको ये सर बैंक डिफॉल्ट कर गए तो कैसे चलेगा?
हाँ वही तो प्रॉब्लम होता है ना, डिफॉल्ट कर दिए तो फिर उसमें आरबीआई फिर पिक्चर में आता है, फिर वो पेनल्टी लगाता है। देखो अनसिक्योर्ड है इस वजह से किसी को भी नहीं दिया ना परमिशन। देखो कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, किसको ये अवेलेबल है, सबको अवेलेबल नहीं है ना। जो ऑथराइज है, जो मतलब जिनका रेपुटेशन ज्यादा अच्छा है, उनको ही परमिशन दिया गया है ना कॉल, ये इसके लिए कॉल मनी मार्केट में काम करने के लिए। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लेकिन रीजनल बैंक जो है, रूरल बैंक है, उनको परमिशन नहीं दिया गया कॉल मनी मार्केट में काम करने के लिए, वो लोग नहीं ले सकते उधारी। ठीक है, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, then foreign banks are there, state and district urban cooperative banks are there, discount and finance houses of India, then security trading corporation of India, then NABARD, then direct participation by term lending institution like LIC, GIC, UTI, indirect participation by other term lending institutions such as IDBI, IFCI and IFC। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। आईडीबीआई क्या है, एक बैंक है जो, क्या है ये आईडीबीआई बताइए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यस वेरी गुड। ये इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है। तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके भी कुछ लिमिटेशन है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिटेशन क्या है। LIC, UTI, GIC ये एंड NABARD आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मार्केट एज लेंडर्स नॉट एज बोरोवर। वो उधारी नहीं ले सकते, वो पैसे दे सकते। मतलब किसी बैंक को अगर पैसे की जरूरत है तो उनको वो पैसे देंगे, लेकिन ये चाहे कि हम पैसे ले लें तो इनको अलाउड नहीं है। तो समझ में कॉल मनी मार्केट में देयर आर रूल्स फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेंट, ये जो पार्टिसिपेंट दिए गए, समझ रहे हैं। LIC, UTI, GIC, IDBI and NABARD are permitted to participate in call market as lenders but not as borrowers। ध्यान में रखिए ये सब। फिर उसके बाद 7 म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो, कुछ म्यूचुअल फंड है, 7 म्यूचुअल फंड है, उसकी लिस्ट है अलग, मैं आपको नीचे बताऊंगा। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो एज अ लेंडर्स। फिर देर आर प्राइमरी डीलर्स। नाउ प्राइमरी डीलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डीलर्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। दीज आर द प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ICICI सिक्योरिटीज, नोमुरा फिक्स्ड इनकम सर्विस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, PNB गिल्ड्स लिमिटेड, SCCI प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड, SBI DFHI प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड। देखो प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो, उनको डीलरशिप की लाइसेंस मिलती है फ्रॉम RBI, और इनका मेन काम होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेस करना। गवर्नमेंट को जब कोई पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो हम अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं। सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है, उसकी कोई वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट बेचता है कुछ देर के लिए पैसे उधार लेने के लिए, उसे कुछ काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपनी सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ठीक है ना, शेयर्स, वो बेचता है। तो डायरेक्टली लोगों को नहीं बेचता, वो देता है किसको, प्राइमरी डीलर्स को। प्राइमरी डीलर्स उनसे सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं एक कुछ अमाउंट पे, और फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को बेचते हैं जिसको जरूरत, जिनको खरीदना रहता है या सब्सक्राइब करना रहता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, प्राइमरी डीलर्स लाइसेंस इनको मिलता है। लाइसेंस कौन देता है, RBI। ओके, हाँ दे अप्लाई करते हैं। जिनके पास बहुत पैसा होता है वो अप्लाई करते हैं अपने फंड्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, उनका क्रिस्टल वैल्यू, क्रेडिट क्रेडिट वैल्यू, वो सबमिट करते हैं। और आरबीआई फिर उनकी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को ड्यू डिलिजेंस करता है, वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद अप्रूवल देता है। क्या यू कैन बी एक्ट एज अ प्राइमरी डीलर। अब प्राइमरी डीलर फिर वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करता है गवर्नमेंट से और इमीडिएटली उनको पैसे दे देता है, और फिर वो अपने पास सिक्योरिटीज रखता है। फिर धीरे धीरे वो जिनको बेचना रहता है हायर रेट पे वो बेचता है। समझा आपको?
क्लियर है सर इसमें तो फिर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना? इसका? हाँ नहीं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं होता बेटा। तो ये जो हर्षद मेहता और जो स्कैम वगैरह ये फिर कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ है? ये देखो आप पढ़िए, इसमें 1996 के बाद ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है उससे पहले नहीं था ना बेटा, है ना। जब ये फ्रॉड मालूम पड़ा तो ये आरबीआई ने पॉलिसी बनाया कि देयर विल बी प्राइमरी डीलर्स who will be buying the government securities, nobody else can purchase that government securities. पर अर्शद मेहता जो परचेज कर रहे थे वो he was also a consultant ना for मनी मार्केट ओनली ना। वो पैसे, उनके पास भी पैसे थे, उधार लेते थे दूसरे से और फिर वो गवर्नमेंट के बॉन्ड से सिक्योरिटीज को परचेज करते थे, बट वो पैसे वो गलत तरीके से ले रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। उधारी पे काम नहीं होता ना, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन मनी, यू कैन नॉट डू इट ऑन अदर मनी। वो दूसरों के पैसे से इससे कर रहे वैसे थे। सेबी वगैरह फिर मतलब कहाँ थे? और ये उनको तो पता चल गया होगा ना? SEBI at that time was not active na, just they were not having so much power. After that SEBI was given the power to regulate the stock exchange policy, transactions and other things, so now they are अभी having very होएगा तो इजीली कैश आउट हो जाएंगे। हाँ yes yes। अब अभी अभी ये होएगा तो क्या बोल यस रहे थे? अभी हो रहेगा तो इजीली पकड़े जाएंगे, मतलब यस ऐसे यस मैंने यस, अभी पकड़े जाएंगे ना। अभी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली CNBC आवाज का एक बंदा एंकर हेमंत घाई caught because of illegal purchase of shares। अभी रिसेंटली 3.5 करोड़ का शेयर्स इलीगली परचेज किया गया था अपनी वाइफ और मम्मी के अकाउंट से। तो जो हाँ सर सुना था वो नॉट अलाउड, रिसेंटली एनडीटीवी का भी हुआ था। हाँ तो दे हैव वेर कॉट इमीडिएटली। फिर बाद में अभी फ्यूचर रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप का जो हेड है उसको बार किया गया है। ही विल नॉट बी द पर्सन टू परचेज शेयर्स इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। So these all things are there. People have a track because all purchase of shares are done in white money. No? It's done through online transactions. So it is very difficult to do any malpractice in this particular thing. Okay. सर ये जो इतने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ट्रांजैक्शन ये होता कैसे है एक्चुअली? ये बैंक टू बैंक? that is see, if you are doing a heavy transaction, it is not through open live market. It is done in there is a separate channel for this particular purchase. ये जो बल्क में जब हम कुछ चीजें खरीदते हैं या ट्रांजेक्शन होता है तो उसका अलग चैनल प्रोवाइड किया गया, एंड दैट इज थ्रू द इन्वेस्टमेंट बैंकर थ्रू। ओके, इट इज नॉट डन इंडिविजुअली। हम अकेले जाके ऐसा 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी चीज है वो वैसे नहीं खरीदा जाता, उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू ही खरीदना पड़ता है। दे विल डू ऑन योर बिहाफ। तो वो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता ना सर? नहीं तो नहीं होता नहीं, कैसे? ट्रांसफर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी रहती अच्छा ओके सर। है ना। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए, प्राइमरी डीलर्स participate in call market as both borrowers and lenders. They can borrow also and they can lend also, but other two आप देख रहे हैं वो लोग खाली lend कर सकते हैं, they cannot be acting as a borrower। अब यहाँ पे देखिए borrowing limit सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना बोरो कर सकते हो। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो 125% ऑफ कैपिटल फंड, उनका जो कैपिटल फंड, उनके पास जो फंड अवेलेबल है उसका वो लोग 125% तक बोरो कर सकते हैं दूसरे बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक खाली 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट। उनके पास दो टाइप का डिपॉजिट होता है, कासा एंड राफा। कासा इज वन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। एक ये टाइप का डिपॉजिट होता है, उसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। और दूसरा होता है राफा, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब एक मुद्दत तक वो मैच्योर हो जाएगा, उसके मैच्योर होने के बाद वापस से वही अमाउंट रीडिपॉजिट होता है। ओके, तो उनको खाली 2% का अलाउड है कॉर्पोरेट बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को। और प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं जिनके पास खुद का पैसा, नेट ओन मनी, वो लोग सेविंग नहीं लेते किसी से। प्राइमरी डीलर्स मैंने बताया ना, जैसे गोल्डमैन सैक है, दे आर हैविंग देयर ओन मनी
पहले आप देखेंगे बनिया लोग होते हैं जो उधारी देते थे किसानों को, वो उनका खुद का पैसा होता था, किसी से सेव मांग के अपने पास रख के नहीं देते थे जैसे बैंक करता है। देयर ओन मनी दे लैंड, दे गिव टू अदर पीपल, नीडी पीपल, जो उसके ऊपर फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स का जो लोन वो ले सकते हैं दूसरे बैंक से 225% तक ऑफ देयर ओन नेट ओन फंड। उनकी जो लायबिलिटीज एसेट्स है उसको हटा के ऑब्लिगेशन जो है, मतलब जो उनके अंदर काम करने वाले लोग होंगे उनकी सैलरी सब डिडक्ट करके जो बाकी पैसा बचता है उसका 225% वो उधारी ले सकते हैं फ्रॉम कॉल मनी मार्केट। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोगों को? यस, यस सर। कोई डाउट है Yes, तो sir. मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताते जाइए। और मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा लाइव मार्केट का भी आपको स्टेटस बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट अभी रजिस्टर किया है आप लोगों के लिए, बिकॉज आई वाज नॉट इन दिस, बट आई थॉट इफ आई हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट so I will be able to show you in live how to observe the graph and how we can sell and purchase a particular share। ठीक है ना, थोड़ा वो प्रैक्टिकली भी हम करेंगे इंशाल्लाह आगे। और दूसरा है लेंडिंग लिमिट, मतलब हम उधारी कैसे कितना दे सकते हैं। पहले था उधारी लेना, और जो उधारी हम दे सकते हैं दूसरे बैंक को वो कितना दे सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक को अलाउड है खाली 50% तक अपना कैपिटल फंड दे सकते हैं उधार पे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा दे दिए तो कभी भी कोई आ सकता है मांगने के लिए, मेरे को मेरा पैसा दे दो, सेविंग डिपॉजिट वाला, तो फिर उनका कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक को नो लिमिट, क्योंकि उनके पास कोई लिमिट नहीं दिया, वो कितना भी उधारी दे सकते हैं किसी को भी। ओके, और प्राइमरी डीलर्स खाली 25% ऑफ द नेट ओन फंड लेंड कर सकते हैं। तो दिस इज द लिमिट, लेंडिंग लिमिट, उधार देने का लिमिट फिक्स किया गया आरबीआई पॉलिसी के साथ। कॉर्पोरेटिव मतलब सर प्राइवेट बैंकिंग ना? नहीं, कोऑपरेटिव बैंक से नॉर्मल प्राइवेट बैंक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक जो होते हैं जैसे मर्चेंटाइल बैंक है, वो कंपनीज वाले लोग जो मिलके बैंक्स बनाते हैं ना, कोई सोसाइटी वाले होते हैं, रिलीजन जैसे कोकन मर्चेंटाइल बैंक होता है ना, तो वो सब को कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल बैंक की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ सोसाइटी वाले वो लोग मिलके बनाते हैं। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेशन बैंक। यस सर। फिर उसके बाद कॉल मनी मार्केट समझ में आप लोगों को? यस। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, नाउ ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? एक normally it's a paper which is issued by government and sell by RBI। समझ में आ रहा है? इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट, और बेचता कौन है? आरबीआई। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट डायरेक्टली जाके वो अपना ट्रेजरी बिल्स जो बनाते हैं वो बेचते नहीं, वो किसके पास बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे बेचो। इज दैट क्लियर? और ये ट्रेजरी बिल्स किस लिए होता है? यूजुअली गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड के लिए जरूरत होती है, थोड़े टाइम के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो अपनी ट्रेजरी बिल्स गिरवी रख के बेच के पैसे को उठाता है। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो ट्रेजरी बिल्स आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब देखो इसमें पार्टिसिपेशन भी हम देखेंगे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर पॉपुलरली नोन एज टी बिल्स। Treasury bills are short-term finance bills issued by the government of country. A treasury bill is a specific type of promissory note issued by government to pay specific sum after a specific period. On behalf of government, these bills are sold by central bank. Central bank is nothing but RBI. ठीक है, अब उसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है वो, उसके मतलब उसका नेचर क्या है बिल का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंट है। तो अब ये पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ सकते हैं। सिंपल है, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। द डिग्री ऑफ देयर लिक्विडिटी इज ग्रेटर देन द ट्रेड बिल्स। लिक्विडिटी मैंने आपको वर्ड बता दिया, टर्मिनोलॉजी क्या है। लिक्विडिटी मतलब बहुत जल्दी मैच्योर होता है,
फटाफट आप आज खरीदे कल बेच सकते हो, लिक्विड। इज दैट क्लियर? फिक्स नहीं रहेगा। तो समझ में आ गया? ट्रेजरी बिल और बॉन्ड में फिर डिफरेंस क्या हो गया? सेम? बॉन्ड इज लॉन्ग टर्म बेटा, कैपिटल मार्केट में जाता है, इसलिए तो बॉन्ड्स अलग है। बॉन्ड्स ऐसा नहीं ओके। कि आप 1 साल के लिए नहीं होता, बॉन्ड्स होता है 10 साल 5 साल, ठीक है? इसलिए वो कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में खाली शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर हो जाए। तो ट्रेजरी बिल जो है 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर हो जाता है। समझा? यस सर। अभी ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड बाय गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। रिस्क फ्री मतलब आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आप ट्रेजरी बिल्स खरीदते हो तो। समझ में आ रहा है? मतलब कभी भी वैल्यू डाउन नहीं होगी, उसकी जो फेस वैल्यू है वो हमेशा वही रहेगी, और कभी भी आप बेचोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट? नाउ ट्रेजरी यस बिल्स, सर। हाँ, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, central bank of the country on behalf of government. Central bank always ready to buy or discount them. Now central bank का काम क्या है? वो ट्रेजरी बिल्स, देखो कुछ लोग खरीदने आएंगे ट्रेजरी बिल्स, कुछ लोग बेचने आएंगे, लेकिन खरीदेगा कौन? आरबीआई। बेचेगा कौन? आरबीआई। ऐसा नहीं है कि मैं बेच रहा हूं और आप खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होता। मतलब डायरेक्ट सेलिंग और परचेज नहीं होता है। अगर मैंने खरीदा है तो मैं किसको बेचूंगा? आरबीआई को ही बेचूंगा, मैं किसी और को बेच नहीं सकता। ध्यान में रखिए। समझ में आया ट्रेजरी बिल्स का मीनिंग, फीचर्स समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Now treasury bills are not hacked by any trade transactions like commercial bill. Commercial bill hack हो सकता है, ट्रेड ये बिल हैक नहीं हो सकता। कमर्शियल बिल आगे हम स्टडी करेंगे क्या है, ठीक है? वो कंपनीज वाले लोग बिल अपना देते हैं, ये आरबीआई दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट के बिल्स को हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं। कमर्शियल बिल किसको बोलते हैं? जो कोई रेप्यूटेड इंडस्ट्री अपना बिल बेचती है, राइट सेल ऑफ करती है, तो उसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। अब ट्रेजरी बिल देखो कितने टाइप की मैच्योरिटी पीरियड होता है, 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, 364 डेज का होता है। ये मैच्योरिटी पीरियड है। आप 91 डेज तक होल्ड कर सकते हो आपके ट्रेजरी बिल्स को। 182 डेज का अलग आता है ट्रेजरी बिल्स, और 364 डेज का ट्रेजरी बिल्स अलग आता है। Now treasury bills are important part of money market of country. Okay, treasury bills qualify to include a statutory liquidity ratio. Okay, then treasury bills provide assured yield, आपको benefit होने वाला है, assured yield है, आपको पक्का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? The bills are issued at low transaction cost, बहुत मिनिमम कॉस्ट में, मतलब आप प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं ना, जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं, जैसे अभी आज भी हम अगर मार्केट में, एक मिनट, हेलो हेलो। यस सर। अभी देखो ट्रेजरी बिल्स आर एश्योर्ड एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे मैं बताया आपको कि अभी हम शेयर खरीदते हैं तो हर शेयर खरीदने के बाद कुछ उसका सर्विस चार्ज लगता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट इसमें बहुत मिनिमम है परचेज करते वक्त ट्रेजरी बिल्स को। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इशूड इन मल्टीपल ऑफ 25,000 रुपीज, मतलब एक ट्रेजरी बिल्स का कॉस्ट होता है 25,000, और अगर आप 10 खरीदोगे तो भी वो हर बिल का कॉस्ट 25,000, मल्टीपल ऑफ 25,000। आप ऐसा नहीं कि 25 का 10,000 खरीद लो 15,000 में, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन इन सिक्योरिटी। जीरो कूपन का मतलब वर्ड ध्यान में रखिए, बैंकिंग सेक्टर में जीरो कूपन मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जीरो इंटरेस्ट है, पे नो इंटरेस्ट। Instead they are issued at discount and redeemed at the face value at maturity. अब देखो, अब आप सोचेंगे सर इसमें बेनिफिट क्या लोगों का? जो लोग लेंगे ट्रेजरी बिल, जो खरीदेंगे, बैंक खरीदेगा, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो ट्रेजरी बिल्स खरीदती है आरबीआई से। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडिविजुअल पर्सन जो हाई क्रेडिट वाला रहता है वो जाके ट्रेजरी बिल्स खरीद सकता है।
तो ट्रेजरी बिल्स में बेनिफिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्काउंट में ट्रेजरी बिल्स मिलता है, मतलब अगर 25,000 का ट्रेजरी बिल्स है एक बिल, तो वो आपको देंगे 23,000 में। आरबीआई आपको 23,000 में देगा, 2,000 आपका प्रॉफिट। कब? 91 डेज के बाद। 91 डेज आप होल्ड करिए, जब आप वापस से आरबीआई को देने जाएंगे तो आरबीआई आपको 25,000 देगा। समझ रहे हैं आपको? क्लियर है? अंडरस्टूड? यस। यस सर। ट्रेजरी बिल्स यस का सर। समझ में है ना मीनिंग? मैच्योर, इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको समझ में है? इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें फिक्स अमाउंट है। आपको बताएंगे कि ये ट्रेजरी बिल इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे आरबीआई आज बेच रहा है, तो आपको लग रहा है लेना है तो आप ले लीजिए, बट वो मल्टीपल्स ऑफ 25,000 के होंगे। 4 लोगे तो आप 2 लाख पे करोगे, मतलब 1 लाख पे करोगे। 8 लोगे तो 2 लाख, मल्टीपल ऑफ 25,000। ऐसा नहीं कि आप 40,000 में ले लो या 30,000 में ले लो, ऐसा नहीं। मतलब आप पे कितना करोगे, मतलब अगर डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है तो आपको 23,000 पे करना रहेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो आप पे कितने करें, हर एक में 2,000 माइनस कर दो, मतलब आपने पे किए 92,000 और आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 91 डेज में। सर इसका जो बोरोवर है उसको कैसे मतलब इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब जो और वो देखो ना, अभी कैसे कर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने पैसा उधारी लिया ट्रेजरी बिल देके, अभी आरबीआई के पास पैसे आ गए ना 23,000 रुपए। अब वो 23,000 रुपए रोल ट्रेड करेगा 91 डेज के लिए, जिस काम में लगाना उसमें लगाएगा, उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट मिला तो आपको 2,000 रुपए दे देगा। उसको अगर 23,000 पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपको 2,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? उसको 3,000 रुपए 91 डेज में मिल गया ना बेनिफिट, है ना? यस सर। ऐसा ऐसा प्रॉफिट होता है। पैसा हमेशा रोल होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। अगर स्टैंड स्टिल रहा, एक जगह पे रुका रहा, तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है। समझ में आ रहा है? इफ यू कीप ऑन रोटेटिंग योर मनी, यू विल गेट बेनिफिट, प्रॉफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर? और वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज। तो ये फीचर समझ में है आपको? ठीक है। यस सर। अभी दो टाइप के ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल है। वन है ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स, जिसके ऊपर ये फीचर्स मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है एडॉक ट्रेजरी बिल्स। ये बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो ट्रेजरी बिल्स मैच्योर कराना, वो एडॉक ट्रेजरी बिल्स। अब देखो ये बहुत सिक्योर होता है, दिस इज वेरी सिक्योर्ड। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं बहुत सिक्योर्ड होते हैं, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट पेपर। तो हम ऑर्डिनरी बिल थोड़ा देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स क्या है? ऑर्डिनरी बिल्स आर आल्सो नोन एज रेगुलर ट्रेजरी बिल्स। These treasury bills are issued to public and to RBI by government through a process of auction or bidding. Auction होता है, bidding होता है, उसके थ्रू दिया जाता है डिस्काउंट प्राइस पे। The prime aim of issuing of ordinary bill is to meet additional short-term financial requirement of the government. Under this category, treasury bills like 182 days, 364 days, and 14 days treasury bills are issued by the government. देखो इसमें ऑर्डिनरी बिल में 3 टाइप है, 182 डेज, 364 डेज एंड 14 डेज ट्रेजरी बिल। क्लियर है? अब एडॉक ट्रेजरी बिल्स देख लेते हैं। एडॉक ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट टू रिप्लेनिश देयर कैश बैलेंसेस। जस्ट इमीडिएट कैश बैलेंस के लिए ट्रेजरी बिल्स बेचा जाता था। एन इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दी टेम्पररी सर्कुलर। किसी के पास अगर पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो 1-2 दिन के लिए गवर्नमेंट को दे सकता है, फिर बाद में 2 दिन के बाद गवर्नमेंट वापस से रिटर्न दे देगा वो पैसे। तो उसमें क्या फायदा हुआ? आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन आप क्या करोगे अपने बैंक में रख के पैसा? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती, भाई मेरे पास इतना पैसा टैक्स कलेक्शन पे आके रखा हुआ है, आप ले लो, फिर बाद में मुझे रिटर्न दे देना, मेरे गवर्नमेंट मतलब स्टेट पे काम के रिलेटेड। ठीक है। अब टी बिल्स के 3 टाइप जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन में होता है अभी भी मार्केट में चल रहा है, जो करंटली चल रहा है। एक है 364 टी बिल्स, जो फोर्टनाइटली ऑप्शन होता है। फोर्टनाइटली मतलब हर 14 दिन पे बेचा जाता है और खरीदा जाता है।
मतलब एवरी अल्टरनेट वेनेसडे, वेनेसडे को इसका मार्केट आरबीआई ऑफिस में होता है सेल और परचेज का। एवरी 14 डेज, मतलब आज वेनेसडे हुआ तो नेक्स्ट वेनेसडे को छोड़ के जो दूसरा वेनेसडे आएगा उसमें फिर से सेल और परचेज होगा। किसका? 364 टी बिल्स। समझ में आ रहा है? और उसका वैल्यू कितना होगा, नोटिफाइड अमाउंट कितना रहना चाहिए, जो कलेक्शन होगा वो 1000 करोड़ का होगा। 1000 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन बेचा जाएगा, मतलब 1000 करोड़ तक का टी बिल्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा उस दिन वेनेसडे को। 91 डेज का जो है टी बिल्स वो वीकली ऑप्शन, मतलब एवरी वेनेसडे को 91 डेज का बिल बेचा जाता है। कुछ लोग जो पहले खरीदे होंगे 91 डेज के बाद उस दिन खरीदने आते हैं, और उसका अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? 500 करोड़। मतलब उस दिन 500 करोड़ के टी बिल्स को परचेज सेल की जाएंगे एवरी वेनेसडे। देखो उससे पहले वाला अल्टरनेट वेनेसडे था 14 दिन पे, ये हर 7 दिन पे। और तीसरा है 182 डेज का, वो भी फोर्टनाइटली होता है एवरी अल्टरनेट वेनेसडे। 182 डेज का मैच्योरिटी पीरियड वाला टी बिल्स रहेगा, और उसका अमाउंट कितना रहेगा? 500 करोड़। समझ में आपको? समझ में आया? ये तीनों अभी चल रहे हैं। कब ये कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुआ। ये जनवरी 1993 में स्टार्ट हुआ है ट्रेजरी बिल्स, और अप्रैल 2005 में ये ट्रेजरी बिल्स बनाएंगे। और वो फिक्स अमाउंट है 500, उतना ही है, उतना ही बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे पार्टिसिपेशन कौन कर सकता है? ट्रेजरी बिल्स आर बैंक, प्राइमरी डीलर्स, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ट्रेजरी बिल्स विल बी परचेज बाय दीज ऑल बॉडीज ओनली। ये लोग ही खरीद सकते हैं, बाकी कोई भी डायरेक्टली जाके आरआरबी में, मतलब जैसे हम शेयर्स खरीदते वैसे जाके ट्रेजरी बिल्स हम नहीं खरीद सकते। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर है? दो कंपोनेंट मैंने इंस्ट्रूमेंट्स अभी मनी मार्केट के लिए हैं, हमें दूसरे भी करने हैं, वो हम लोग कल के लेक्चर्स में करेंगे। अभी ये आपको क्लियर है? डाउट कोई है क्या? क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो अभी क्लियर मुझे सर। इस टॉपिक पे। यस, किसी को कोई क्वेरी है? No, sir. मनी सर मार्केट। ये ट्रेजरी बिल है ना, हाँ, वो लिक्विड फंड जैसा ही है ना? क्योंकि सर लिक्विड फंड्स में भी तो मतलब गवर्नमेंट को ही दिया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया जाता है ना। नहीं, लिक्विड फंड्स किसके लिए होता है? लिक्विड फंड्स अलग होता है, वो तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है ना, दैट इज रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। लिक्विड फंड्स टोटली शेयर्स के ऊपर डील करते हुए करा जाता है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। और ट्रेजरी बिल्स, इट्स नॉट अ लिक्विड फंड, इट्स अ बिल विच इज इश्यूड बाय द आरबीआई ओनली। कोई और नहीं मतलब कर सकता है। एग्जैक्टली। सर ये ये म्यूचुअल फंड है जो 2 दिन 3 दिन के लिए, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड होता है, जो आप 2 दिन के लिए ओवरनाइट फंड आप दे सकते हो उधारी पे, और फिर बाद में 2 दिन के बाद इमीडिएटली आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो आपका पैसा लेके 2 दिन में किसी शेयर्स में पैसे लगा के उससे प्रॉफिट कमाने का करते हैं। समझे? यस सर। हाँ, और ट्रेजरी बिल्स के साथ ये शेयर मार्केट में नहीं आता, ये एक गवर्नमेंट का एक हिस्सेदारी होती है जो आप उधारी पे दे रहे हो किसी को, इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ट्रेजरी बिल्स में लिखा रहता है कि आई विल बी शेयरिंग अवर सम सिक्योरिटीज टू यू। अब उसके ऊपर आप कुछ फेस वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसमें फेस वैल्यू फिक्स होता है 25,000 फिक्स करके रखा हुआ है, और आपको ऑप्शन में बिडिंग में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। उसका ऑप्शन होता है 23,000 से स्टार्ट होता है, ज्यादा लोग खरीदने आए तो 23 से फिर 24,000 हो जाएगा, तो फिर मार्जिन कितना मिलेगा? 1,000। समझ में आ रहा है? बिडिंग होता है, रेंज, प्राइस रेंज लगाते हैं कि आपको 23 से 24 के रेंज में ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा ट्रेजरी बिल्स।
क्लियर है? यस? यस सर। Yes, sir. हाँ, बाकी लोग को समझ रहा है कि नहीं? कुछ डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज। यस। नाउ स्टूडेंट प्लीज गिव यू, अभी एक चीज पूछना था कि व्हाट्सएप ग्रुप पे 52 स्टूडेंट्स आ गए, तो एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं? हम्म? तो व्हाट्सएप पे दूसरे लोग भी ज्वाइन किए हैं एक्चुअली। हाँ, वही वो लोग अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर आज वन मोर स्टूडेंट हैव जॉइंड दिस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। वो लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे क्योंकि उनको मिला नहीं होगा लिंक अभी। सर हाँ, एक बार आप ना व्हाट्सएप ग्रुप का एक बार और लिंक शेयर कर दीजिए। हमारे सिविल में एक दो स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी तक मिला नहीं है। अच्छा। जी सर। लेकिन लेकिन वो यहाँ इसमें रजिस्टर करे थे क्या? जी सर, उनका नाम है, आपने वो जो शीट भेजी थी ना, उसमें हाँ नाम है हाँ। उनका। अच्छा, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए। जी सर। ठीक है, आप ये शेयर कर दीजिए उनके साथ लिंक, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। तो प्लीज ओके, नाउ थैंक यू। स्टूडेंट, कैन यू पुट योर अटेंडेंस नाउ? यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय। यस सर। सर मेरे साथ में ना मेरा एक दोस्त और भी साथ में भेजा बैठा हुआ है, तो उसका भी अटेंडेंस अभी मैं मार्क कर दूं क्या इधर ही? क्योंकि उसको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिला नहीं था, तो मेरे पास बाजू में आके ही बैठा हुआ है। हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं एक्चुअली। नहीं बेटा, वैसा मत करो ना, है कि नहीं? क्योंकि फिर ये चैट बॉक्स में सेव होता है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, वैसा मत करो। वो अटेंडेंस का अच्छा। इतना मैटर नहीं है, उसको बोलो अपने लॉगिन से फिर बाद में ज्वाइन करना है। अभी मैं चैट लिंक शेयर किया ना, तो उनको बोल दो ज्वाइन करने के लिए। और नेक्स्ट ओके लेक्चर ओके। से बेटा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 लेक्चर्स में इतना अटेंडेंस डिफर नहीं करेगा, ठीक है? प्लीज अदर स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, ताकि हम लोग प्रॉपरली स्टडी कर पाए, ठीक है ना? तो टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्लियर है सबको? एनीबडी इज हैविंग डाउट इन टुडेस टॉपिक? यस? नो सर, क्लियर है सर। थैंक यू। मॉर्निंग में क्या स्टूडेंट लेक्चर्स कम अटेंड करते क्या? ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो at 12 o'clock for the second next session. Okay, thank you very much for attending today's session. So everybody have marked the attendance, huh? Should I end